Types of support. One is your smooth surface support. When a body is supported by a smooth surface, then at point of contact between the body and the surface, at point of contact only normal reactions act. Smooth surface support. When a body is supported by a smooth surface or frictionless surface or frictionless support. When the body, suppose this is my body A, is supported by a smooth surface. So at point of contact, suppose this is P is my point of contact. P is the point of contact. और ये क्या है? Smooth surface or frictionless surface. Then you will represent at the point of contact only the normal reactions. So reactive force here will be the normal reactions. So NP is your normal reactions force and active force is your W is the weight of the body. So you will represent like this. The point of contact, according to the principle of transmissibility, you may transfer this if the condition of equilibrium remains unchanged. Then you may transfer this force along the line of action of this force from one point to the another point. So you may represent like this. This is my NP reactions and the weight of the body is your W. So in this way you may represent like this. Okay. So smooth surface support means when a body is supported by a smooth surface or frictionless surface, then at point of contact only reactive force is your normal reaction force and active force is your weight of the body. So according to the condition of equilibrium or principle of transmissibility, you may represent with the help of line of action of the force, you may represent like this. Now you can apply the condition of equilibrium. Condition of equilibrium means summation of the forces in vertical direction must be 0 and summation of the horizontal direction must be 0. Here there is no horizontal force. So here you will apply the summation of the forces in vertical direction must be 0. So NP minus W, NP is your positive and W is your negative, is equal to 0. So NP is your W. Second is your roller support. Second is your roller support. Roller support. Okay. Roller support in beam, suppose like this. You will be represent like the problem. This kind of support is your roller support. Okay. सो ये आपके रोलर सपोर्ट है. इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉब्लम्स में बीम्स वगैरह की जो प्रॉब्लम है. ठीक है. व्हेन ए बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए रोलर सपोर्ट देन इट एक्ट लाइक ए स्मूथ सरफेस सपोर्ट और फ्रिक्शनलेस सपोर्ट. हियर वी हैव एन these rollers roll about the axis of roller, means we have a translatory motion as well as rotational motion. As a translatory and rotational motion means general motions. So at the point of contact in roller support also we have a normal reactions only. At the point of contact we have a normal reactions only. So when you have a roller support in any problem, then you will replace the support by a normal reaction. Suppose this is my A and this is my B point. So here the normal reaction is your RA and at this point the normal reaction is your RV. So this support is replaced by the normal reactions RV and this support is replaced by a normal reactions RA. So in any problem, suppose we have a roller support. So roller support act like a smooth surface support or frictionless support because these roller freely can roll in translatory motion or we have a linear motion as well as the rotational motions.
so it act like a frictionless support. So in this way, in this type of problem, you can replace this roller support by a normal reactions only. ठीक है. Another one is your hinged support. Hinged support or pinned support. Pinned support आपका कहीं पर हिंज्ड और पिंड सपोर्ट मिलेगा. तो हिंज्ड और पिंड सपोर्ट में ये क्या देखिए इस तरीके से होगा. यहां पर नट और बोल्ट या इस तरीके से दिखाया जाएगा रिप्रेजेंटेशंस. सपोज दिस साइड इज योर हिंज्ड सपोर्ट एंड दिस साइड इज योर रोलर सपोर्ट. ठीक है, ये हमारा रोलर सपोर्ट है दिस साइड. सो इन हिंज्ड सपोर्ट देयर इज द मेंबर, दिस मेंबर, the member, suppose this member can rotate. Suppose in hinged support like this, so this member can rotate about the axis of this pin or about the axis about this hinged axis, but it cannot translate linearly in x direction or y directions. So here we have only two reactions. One is your horizontal reactions with respect to the given problem if it is in Cartesian coordinate systems. So we have a normal reaction in horizontal direction as well as in vertical directions. So basically, if you have a hinged support or pinned support, this is my pin, this is my pin, or hinged support. So in hinged support, this member, the connected member which is connected by this hinge, here is the fixed, and here we have a nut and bolt type support. So this member easily can rotate about the axis of this pin, but it cannot move in x direction as well as in y direction. So here the reactions are the horizontal reaction as well as the vertical reactions if the problem is 2D. So in 2D plane we have a horizontal reaction as well as the vertical reactions. So this type of support is replaced by like this. So here you have a vertical reactions VA or horizontal reactions HA. Suppose this is my point A, this is my point B, and here you have only the roller support. So roller support, it acts like a smooth surface support. In roller support, the roller support is replaced by the vertical reactions only. So here you will represent like the vertical reactions RB. So here you may represent the horizontal reactions as well as the vertical reactions HA or VA, or in some book you may write like this. This is my vertical reactions RV or RH, and here this is RV. So ये डिपेंड करता है नोटेशन आपको क्या देने हैं. RV means vertical reaction and this is my horizontal reaction, because there is no displacement, there is no linear displacement in horizontally or vertically. Only this member can rotate about the axis of this pin, or about the axis of this hinged support. So it can freely rotate, but it cannot move horizontally or vertically. So here we have two reactions. One is your horizontal reactions and another one is your vertical reactions. So you may represent like this reaction suffix H means horizontal, suffix B means vertical. ठीक है, and this roller support is replaced by only the vertical reactions. Or you may represent V for vertical at A, vertical reaction at A, or horizontal reaction at point A. So it depends upon you. You can represent like this RH or RV and RB. So basically in hinged support or pinned support, a member like this. Suppose this is pin. So this member can rotate about the axis of this pin, but it cannot move like this or like this or like this. This member can rotate about this pin only. So this kind of support is called the pin support or the hinged support. In roller, it can this member can roll over the support in roller support. So here we have only the vertical reactions. So hinged support means the member can rotate about the axis of the pin or axis of the pin freely, but it cannot move
linearly in horizontal direction as well as the vertical directions. So here we have two reactions. One is your vertical reactions, another one is your horizontal reactions. The support, the hinged support is replaced by the two reaction, horizontal reaction और vertical reaction, and roller support is replaced by the only vertical reaction. तो ये आपको प्रॉब्लम जब सोल्व करेंगे तो आपको रिप्लेस करना आना चाहिए, ये हिंज सपोर्ट को रिप्लेस करेंगे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वर्टिकल रिएक्शन से, रोलर सपोर्ट को रिप्लेस करेंगे वर्टिकल रिएक्शन से ओनली, ठीक है. सो वन इज योर स्मूथ सरफेस सपोर्ट, अनदर वन इज योर हिंज सरफेस सपोर्ट और पिन सपोर्ट, एंड थर्ड वन इज योर फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड और विल्ट और वेल्डेड सपोर्ट, ठीक है. या तो हम फिक्स कर दें, कंप्लीटली विल्ट कर दें, इनबिल्ट है, और ये आपका वेल्डेड सपोर्ट है. सपोज ये मेरा एक मेंबर, यहां पर मैंने इसको पूरे को एक बीम है यहां पर वेल्डिंग कर दी, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, वेल्डिंग कर दी, ठीक है, और ये लोड मेरा एक्ट कर रहा है. दिस इज द कैंटिलीवर बीम लाइक दिस. सो ये इस टाइप का जो सपोर्ट होगा, ठीक है. सो इन दिस काइंड ऑफ सपोर्ट वी हैव एन horizontal reactions. It can, the member cannot move, the member in this case in fixed support or welded support or weld support, ठीक है, there is no rotational and linear movement of this member about the fixed axis. So here it cannot move. Suppose this is like this is fixed, so it cannot move about the axis of the support, or it cannot translate. So here we have a horizontal reactions. This is point A, this is point. Suppose here we have a roller support like this. Suppose, okay. So here we have a horizontal reactions RA and vertical reactions RV, and with respect to the applied load, it will try to bend in these directions. So here we have a resisting moment MA. So with respect to the applied load, the direction of resisting moment, it depends upon the applied load directions, ठीक है. अगर जो applied load इस तरीके का, तो resisting moment आपका इस तरीके से है. Suppose the beam, or you may represent like this W, and this is fixed. So you will replace the fixed support YA. One is your horizontal reactions RA, A point A, and this is my B point. So here is RA and vertical reactions RV, and the resisting moment, suppose this is my applied load W, ठीक है. So resisting moment, it depends upon the applied load, so it will offer the resistance against the deflection. ये इसको ट्राई करेगा टिल्ट करना लाइक दिस, इसको बेंड करना चाहेगा ऊपर से लगता, ठीक है. तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसको सेम पोजीशन मेंटेन करना चाहेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है. इसको इस तरीके से झुकाना चाहेगा, तो यहां से इसको रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा. सो रेजिस्टिंग मोमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, ठीक है, किस तरीके का लोड लग रहा है. और यहां पर हमारा सपोज ये रोलर सपोर्ट है, तो इसको हम ये रिएक्शन आर वी से, यहां पर आर बी से रिप्रेजेंट कर देंगे. सो दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज कॉल्ड द रोल फिक्स्ड सपोर्ट. इन फिक्स्ड सपोर्ट, we have a horizontal reaction, vertical reaction and resisting moment, ठीक है. तो आपका फिर से मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं. सपोज ये कैंटिलीवर बीम है, एंड द लोड इज, दिस इज माय एक्सटर्नल लोड W एंड फिक्स्ड सपोर्ट. सो फिक्स्ड सपोर्ट को हम रिप्लेस करेंगे. हियर एक्सटर्नल अप्लाइड लोड इज योर W. हियर वी हैव a horizontal reaction, suppose at point A, and this is point B. So RA, and the vertical reaction is your R vertical reactions, ठीक है, RAH horizontal reactions, and at point reaction at point A in vertical direction RAV, ठीक है. तो ये नोटेशन डिपेंड करता है, R कर देते हैं यहाँ पर, V कर देते हैं ओनली. और रेजिस्टिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस, it will try to deflect like this. So here the resistance is like this, resisting moment at point A, ठीक है. और ये आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, में दिस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, H कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर दिया, और ये वर्टिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर दी आपका RH और R सफिक्स B,
ठीक है, एंड रजिस्टिंग मोमेंट एम ए, ठीक है, और ये अप्लाइड लोड इज योर डब्ल्यू। तो ये मेरा केस हो गया फर्स्ट। सपोज केस सेकेंड आपका, सपोज यहाँ केस सेकेंड में आपका ये है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लोड पी लोड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका इसको रिप्लेस करोगे, पहले तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, ठीक है, आर एच हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, आर वी इज योर वर्टिकल रिएक्शन, एंड रजिस्टिंग मोमेंट दिस फोर्स ट्राई टू डिफ्लेक्ट इन वर्टिकली लाइक दिस, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर रजिस्टिंग मोमेंट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस तरीके से रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो एम ए, और ये अप्लाइड लोड हमारा पी है। तो बेसिकली द फिक्स्ड सपोर्ट इज रिप्लेस्ड बाय द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एंड रजिस्टिंग मोमेंट। द रजिस्टिंग मोमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस इट्स सेंस डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन कर रहा है तो उसको रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा, उसके अपोज करेगा, ठीक है। अगर जो ऊपर की ओर हम डिफ्लेक्ट करना चाहे तो इसको अपोज करेगा, इसको सेम इक्विलिब्रियम कंडीशंस में लाना चाहेगा। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, वर्टिकल रिएक्शंस एंड रजिस्टिंग मोमेंट। So fixed support is replaced by a horizontal reaction, vertical reactions and resisting moment. Simply, in smooth surface support, the support is replaced by the vertical reactions. In case of the roller support, the support is replaced by the vertical reaction only. And hinged support, the support is replaced by the horizontal or vertical reactions. In fixed support, the support is replaced by the horizontal reaction, vertical reactions and resisting moment. The resisting moment it depends upon the external applied load. ठीक है, तो हमारे पास अभी तक हमने यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट किए। पहला था स्मूथ सरफेस सपोर्ट, ठीक है, एक साथ देख लेते हैं इनको। तो स्मूथ सरफेस सपोर्ट, फर्स्ट वन था स्मूथ सरफेस सपोर्ट, स्मूथ सरफेस सपोर्ट, एक साथ यहां पर लिख देता हूं। तो स्मूथ सरफेस सपोर्ट में हम लोगों ने देखा कि ये हमारा मेंबर है और यहां पर स्मूथ सरफेस के द्वारा, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से कि ये मेरा आ जाएगा वेट ऑफ दिस बॉडी एंड द सपोर्ट इज रिप्लेस्ड बाय दिस सपोर्ट व्हाट। सो यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा एनपी, और इसको आप दिखा सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी डब्ल्यू, और इसके अलोंग द लाइन यू मे ट्रांसफर लोड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द सेम लाइन ऑफ एक्शंस। तो ये एनपी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये मेरा सेंटर है। सेकेंड हमने देखा आपका रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में क्या है, रोलर सपोर्ट इज लाइक ए स्मूथ सरफेस सपोर्ट। तो इस तरीके से हमारा ये सपोर्ट है। तो यहां पर इस सपोर्ट को किससे रिप्लेस करोगे, इन दिस केस दिस रोलर सपोर्ट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिकल रिएक्शंस ओनली, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है, तो यहां पर मेरा इस तरीके से ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा आर ए, ठीक है, और ये बीम का रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। आगे जाके सपोज ये और सपोर्ट है यहाँ हमारा, ठीक है, तो ये मैं रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दिखाऊंगा आर ए एंड आर बी, ये बी पॉइंट के एस्पेक्ट में। और थर्ड हमने देखा ये अभी कि रोलर सपोर्ट हो गया, पिंड सपोर्ट। तो इन केस ऑफ द पिंड सपोर्ट हमने थर्ड में देखा था पिंड सपोर्ट, पिंड और हिंज्ड सपोर्ट। तो पिंड और हिंज्ड सपोर्ट में क्या था हमारा, ये इस तरीके से था कि यहाँ पर फिक्स है और यहाँ पर ये है मैं बीम इस तरीके से। तो ये बीम क्या हो रहा है, सपोज यहाँ पर हम दिखा देते हैं रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो ये वाला जो हिंज सपोर्ट है इसको हम एक्सट्रैक्ट करें, इसको आइसोलेट करेंगे। तो ये मेंबर क्या है, दिस मेंबर कैन रोटेट अबाउट दिस पिन, इट कैन रोटेट फ्रीली बट इट कैन नॉट ट्रांसलेट, it doesn't have the translate motion in horizontal direction or vertical directions. So this support is replaced by the one is your horizontal reaction RA, this is point A, this is point B, another one is your my vertical reaction. So यहाँ पर RH कर देंगे horizontal के लिए और ये RB, ठीक है। there is no resisting moment, it can rotate freely, ठीक है, ये ऐसे पूरा रिवॉल्व कर सकती है, there is no resisting moment and here is the roller support, so RV,
तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये डायग्राम रहेगा, इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में आप लोड का रिप्रेजेंटेशन करोगे, देन यू अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू फाइंड आउट द रिएक्शंस। फिर थर्ड मैंने डिस्कस किया, इसके बाद फोर्थ डिस्कस किया मैंने फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड और वेल्डेड सपोर्ट, वेल्डेड सपोर्ट, और कहीं पर लिखा था विल्ड सपोर्ट और विल्ड सपोर्ट। इस तरीके से ये लैंग्वेज में मेंशन होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये इस तरीके से है कि इस तरीके से सपोज कैंटिलीवर बीम है डब्ल्यू और ए पॉइंट पे फिक्स है। तो फिक्स्ड मींस आप न तो मूव कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, ना वर्टिकली मूव कर सकते हो, और डाउनवर्ड आप करोगे, डिफ्लेक्ट करना चाहोगे, लोड अप्लाइड करोगे तो इट ऑफर द रेजिस्टेंस। तो यहां पर इसको रिप्लेस करोगे आप, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन से RH, वर्टिकल रिएक्शन से RV, और इस लोड के संदर्भ में देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस लोड यू अप्लाई द रजिस्टिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट A। तो यहां पर हमारा रजिस्टिंग मोमेंट इस डायरेक्शन में करेगा, क्योंकि इसको इसके इस डायरेक्शन में झुकाना चाहेगा, डिफ्लेक्ट करना चाहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द लोड डायरेक्शन। सो हियर दिस फिक्स्ड सपोर्ट ऑफर द रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस रिफ्लेक्शन। सो रजिस्टिंग मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी हमारी, ठीक है। और अगर जो लोड इस तरीके से दिखा रखा हो कि भाई लोड हमारा ये फिक्स्ड है और लोड का रिप्रेजेंटेशन ये है, ये P लोड लग रहा, A पॉइंट और B पॉइंट, तो आप इसको शो करोगे, यहां पर आपका होगा RH हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस एंड वर्टिकल रिएक्शंस एंड द रेजिस्टिंग मोमेंट इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड P। तो ये ऊपर की ओर हमारा चाहेगा कि इधर डायरेक्शन में हम भाए, तो बट यहां पर ये फिक्स सपोर्ट क्या करेगा, इसको रेजिस्टेंस अफोर्ड करेगा। तो ये रेजिस्टिंग मोमेंट मेरा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा A पॉइंट पर, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है। तो ये हम देख लेंगे कि इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल लोड अप्लाइड हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन और रेजिस्टिंग मोमेंट एक्ट करेगा। तो सबसे पहले आप जो बीम गिवन है आपको, उस डायग्राम को लोड डायग्राम में, लोड डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन आप दिखाओगे। तो लोड डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और कौन कौन सी रिएक्शन एक्ट कर रही, कौन कौन से एक्टिव फोर्सेस हैं और रिएक्टिव फोर्सेस हैं। सो दीज आर द रिएक्टिव फोर्सेस, वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन एंड रेजिस्टिंग मोमेंट, और दिस इज माय अप्लाइड फोर्स। सो दिस इज एक्टिव फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज योर एक्टिव फोर्स एंड बॉडी weight also comes under the active force. So here is the representation of active force and the reactive force. So this is my fixed or welded support. Another देखते हैं, a beam or member, a member is supported by a knife edge support, नाइफ एज सपोर्ट और फलक्रम, ठीक है। सपोज एक बीम है हमारी इस तरीके से है, ये हमारा सपोर्ट है और यहां पर आपकी बीम है, तो बीम इस तरीके से रखी है आपकी सपोज, ठीक है। ये बीम है AB लेंथ की, तो ये जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एट दिस नाइफ एज, सपोज यहां पर आपका ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, तो यहां पर आप इसको कैसे रिप्लेस करोगे, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दोगे। यहां पर कौन कौन से लोड करेंगे, फॉर स्मूथ सरफेस वी हैव एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वी हैव वर्टिकल रिएक्शन, सो RA, ठीक है। और यहां पर हमारा क्या है, ये नाइफ एज सपोर्ट है, तो यहां पर नाइफ एज सपोर्ट में एक रिएक्शन एक्ट करेगी एंड द रिएक्शन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ दिस बीम, इस तरीके से रिएक्शन एक्ट करेगी। सपोज ये B सपोर्ट पॉइंट है, तो B पॉइंट पर हमारा एक रिएक्शन एक्ट करेगी परपेंडिकुलर RB, ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी भाई, ठीक है, 90 डिग्री पर। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ए मेंबर इज सपोर्टेड बाय द नाइफ एज सपोर्ट, हियर सपोज दिस इज माय स्मूथ सरफेस और फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, ओनली द नॉर्मल रिएक्शन रिप्रेजेंट करोगे आपका। और जो नाइफ एज सपोर्ट है, यहां पर आपका एक रिएक्शन एक्ट करेगा, दिस रिएक्शन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ दिस मेंबर, ये जो एक्सिस है मेरी, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर यहां रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे। नाउ यू कैन अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू फाइंड आउट द रिएक्शंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शंस, ठीक है। जो भी एंगल्स वगैरह हैं आप उसको वो रिप्रेजेंट करोगे, थीटा एंगल है तो थीटा एंगल का रिप्रेजेंटेशन यहां पर दिखा दोगे, ठीक है, यहां भी थीटा हो जाएगा। तो अब कंपोनेंट का रिजोल्व करना है आपको। दूसरा,
ए बॉडी सपोर्टेड बाई द नाइफ एज सपोर्ट और फल्क्रम। ए बॉडी इसी में है सेकेंड केस आपका, ए बॉडी इज सपोर्टेड बाई द फल्क्रम और नाइफ एज सपोर्ट, नाइफ एज सपोर्ट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब यहां पर हमारा क्या है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? यहां पर एक्टिव फोर्स क्या है? वेट ऑफ द बॉडी इज योर एक्टिव फोर्स एंड रिएक्टिव फोर्स, दिस इज माय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ए पॉइंट है और दिस इज माय बी पॉइंट है, फल्क्रम पॉइंट पे। तो यहां पर आप दिखाएंगे जैसे ही यहां पर रिएक्शन एक्ट करेगा, इस बी पॉइंट पर रिएक्शन एक्ट करेगा, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एन ए यहां पर जीरो हो जाएगी। अभी ये जीरो है, बट जैसे ही आर बी एक्टिव होगा, रिएक्टिव फोर्स आर बी, ठीक है, ये इसके टेंजेंट से ली होगा, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन आप दिखाओगे इस तरीके से। यहां पर आपका है डब्ल्यू वेट और ये जो आपका नाइफ एज सपोर्ट है, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा आर बी और इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास करेगा। तो पहला तो हो गया आपका सेल्फ वेट और दूसरा हो गया आपका क्या हो गया है, यहां पर रिएक्टिव फोर्स आर वी और तीसरा आपका ये हो गया आपका यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एन ए। बट जैसे ही ये टर्न करेगा और यहां पर आपका रिएक्शन एक्ट करेगा तो एन ए हमारा क्या हो जाता है, यहाँ एन ए जीरो हो जाता है भाई, ठीक है, ऊपर की ओर उठ जाएगा, ये कोई कांटेक्ट ही नहीं रहेगा। जैसे ही ऊपर की ओर उठेगा इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आएगा कि ये ऊपर की ओर इस सपोर्ट से ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है। तो यहां पर ये कांटेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शंस एन ए क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी और ये रिएक्टिव फोर्स हमें आर बी मिलेगा, ठीक है। तो ये आप रिप्रेजेंटेशन यहां पर दिखाओगे, ठीक है। सपोज अब इस केस में सपोज कर लीजिए यहां पर कि एक, इसी को ले लेते हैं फिर से, कि एक मेरा बॉडी ये है, W है, यहां पर आपका, ठीक है, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है और एक लोड एक्ट कर रहा है P। सपोज P इज योर एक्टिव फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो ये एक्टिव फोर्स है और ये भी एक्टिव फोर्स है। अब हमारा जैसे ही यहां से ये टर्न करेगा तो यहां पर एक रिएक्शन एक्ट कर रही है ना, पिछले केस में मैंने बताया। तो ये इसका हम डायग्राम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई एक W आ गया एक्टिव फोर्स, दूसरा मेरा एक्टिव फोर्स P है जो हॉरिजॉन्टल थीटा डिग्री पे एक्ट कर रहा है और तीसरा मेरा एक एक्ट करेगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा RB। इसको हम आगे एक्सटेंड कर देंगे और दिखाएंगे इस तरीके से और यहां से मेरा कनेक्शन क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो एन ए मेरा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा। तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे हमारा, एक तो W हो गया, दूसरा हमारा अप्लाइड लोड P हो गया और इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा देंगे तो ये आपका आ जाएगा RB, ठीक है, RB। और वैसे भी equilibrium of three force system, when three forces are acting on a body or body is in equilibrium condition, then it form the concurrent force system, ठीक है। तीन फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं और नॉन पैरेलल हो और कोप्लेनर हो तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगे ही होंगे, मींस कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम को फॉलो करेंगे ही करेंगे, लॉ ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो हमारे ये एक पॉइंट पर एक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज यहां पर हमारा लोड लग रहा है, ठीक है, ये मेरी एक बॉडी है W, दिस इज द बॉडी, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक है। यहां पर आपका ये सपोर्ट है, ठीक है, और लोड मेरा यहां पर एक्ट कर रहा है सपोज, ठीक है, ये लोड P लोड एक्ट कर रहा है यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थीटा से, ठीक है, या ये हमने ले लिया सपोज ये लोड लगा P फोर्स, ठीक है। इसका जो वेट है एक्टिव फोर्स W हो गया और एक वेक्टर एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर ये हो गया हमारा
P फोर्स, एक्टिव फोर्स। अब यहां पर जब B पॉइंट पर आएंगे तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर हमारा कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे ही कॉन्टैक्ट खत्म होगा तो ये जो रिएक्शन है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहां पर Na जीरो हो जाएगी। जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट होने पर यहां पर हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शंस जीरो हो जाएगी। अब कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये हमारा आ जाएगा, एक तो बॉडी W, एक्टिंग फोर्स P है, एक्टिव फोर्स P एंड एक्टिव फोर्स W, और एक मेरा यहां पर सपोज ये इसके परपेंडिकुलर यहां पर ये मेरा नॉर्मल रिएक्शंस RB एक्ट करेगी। अब हमने पढ़ा है कि भाई थ्री फोर्सेस, ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम एंड थ्री कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देन इट फॉर्म्स द कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम इसको आगे बढ़ा देंगे, तो इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा दिया और इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा दिया। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई कि यहाँ पर हमारे एक फोर्स P है, दूसरा मेरा नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी और ये मेरा वेट कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सेंटर C था। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फिर देन यू कैन अप्लाई द अलामीज थ्योरम ऑल्सो, और you can apply the condition of equilibrium, you can resolve the force in horizontal direction and vertical directions। जो भी एंगल्स आपको मालूम हो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये था हमारा, तो ये एंगल्स वगैरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थीटा था तो हॉरिजॉन्टल से ये इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा दिया। अब ये कितना एंगल बनेगा ये आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप एंगल देख लेंगे। ठीक है, इसके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट ड्रॉ करके थीटा रिप्रेजेंट करेंगे। सो इन दिस वे यू मे ट्रांसफर द लोड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। ओके, फोर्स ट्रांसमिशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज्ड then you can transfer the load from one point to the another point in the same line of action। तो सेम लाइन ऑफ एक्शन में ट्रांसफर करेंगे, ऐसा नहीं किसी दूसरी लाइन ऑफ एक्शन में ट्रांसफर कर दिया। तो आपके ये हैं मेन जो सपोर्ट्स हैं, वन इज योर स्मूथ सरफेस सपोर्ट, सेकेंड इज योर रोलर सपोर्ट, थर्ड वन इज योर हिंज्ड सपोर्ट, फोर्थ वन इज योर बेल्डेड सपोर्ट एंड फिफ्थ वन इज योर फल्क्रम और नाइफ एज सपोर्ट। तो ये कुछ कॉमन सपोर्टेड हैं जिसका किस तरीके से हम रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है व्हेन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिप्लेस द सपोर्ट बाय द रिएक्शन एक्टिव फोर्सेस और रिएक्टिव फोर्सेस। थैंक यू।